सही है। अच्छा जी, keep on taking the snapshots और अपने लैपटॉप में सेव कर लो so that you can, and I will also share this document with you on the Google Classroom. Don't worry about it. All right, thank you. Okay, so composite, non-composite, these are both the data types are basically user defined data types. ठीक है? And in composite we have got other data types involved in it, like multiple data types can be a part of a composite data type. And in non-composite, single data type is involved in the non-composite data type. Multiple data types, single data type. This is the main difference. Okay? Now we'll proceed. See the names. Composite involves set, record, and classes and objects. On the contrary, non-composite will have enumerated and pointers. If I get time, I will definitely make these programs in Visual Console application and then I'll explain these things to you. Now we'll, जी, बोलो बेटा. Do you have any queries, Swale? No. ठीक है. So enumerated and pointers. These are based on the single data type. Just mark this. This is based on the single data type because it is non-composite. So now enumerated, we'll first discuss the theoretical points, the technical points of that data type, and then we will proceed further. So enumerated, from the name, we will use the keyword enum while declaring this type of data. Okay, the very important thing, the first thing in the beginning to do, enumerated data type. It contains distinct constants. What is the difference between constant and variables? Anyone tell me? Change of value would be what? Variable or constant? The bus. Yes, variable actually stores in the memory and it keeps on changing. On the contrary, constant remains constant. It can be a value that remains same throughout the program or any constant value, for example, pi. सही है? So we are actually fixing, suppose I am storing 0 in total. Total is equal to 0. This is actually a distinct constant value that I am actually storing in the variable total. So this is that enumerated data type will have fixed values stored in it, one thing. Then all values are related to each other. ठीक है? If suppose I am storing the values of month, it will store all the values that are actually the month's name. If I am storing all the possible values of winning and losing, then it would be related to those states that are actually related to winning, losing, or just other status of the game. So implied order of values, this is very important. Whatever the values and the order of the values, it would fetch the same value. Okay? It would go in the same order. You cannot change that order further. Defined in a data type in a program. कहाँ पे? In the declarative phase. It can be defined there. It is easier to remember and it makes the code readable. It makes the code shorter. Because अगर आप सारे months को different values के अंदर store करोगे, then you will have 12 constant values. On the other hand, if you use enum type, you will have one structure, that's enum, and then you can store all possible values in that variable. ठीक है? So this is point I have already explained. Allows to set meaningful names to the enum and its members. So again, meaningful names. We consider this point while naming the variables. While naming the variable data type, we can have the same meaningful name for that. Okay? Both for the enum and for the members. For both of them. Okay? Now,
Moving on, this is pseudocode and this one is Visual Basic. Now have a look of it. In pseudocode, you will use the keyword type. In Visual Basic, you will use the keyword enum. Number two, you will have the meaningful variable name of the data type. Here we have explained the data type months. ठीक है, type month, enum month. So far so good. हाँ, बाज बोलो. Ma'am, will we be using Visual Basic throughout the syllabus, like in every part? Because I have been doing Python since O levels, right? So I'm not familiar with Visual Basic at all. Okay, I had a plan. First, I'll explain all the Visual Basic things so that it would be easier. It all depends on the student, whether you continue with Python or Visual Basic. ठीक है? So I had a plan कि मैं Python को ये सारी चीजों में करा दूंगी. अभी हम लोग सिर्फ सूडो कोड करें, तो ये सिर्फ मुझे एक स्ट्रक्चर लगा था, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. If you have expertise in Python, we will definitely do Python later on. ठीक है? मैम बट आई थिंक सूडो कोड इज कंपलसरी, क्योंकि कुछ Yes. क्वेश्चन ऐसा आते हैं जिसमें सिर्फ सूडो कोड में आपको राइट करना होता है. जी, इसीलिए मैं, अच्छा, विजुअल बेसिक और सूडो कोड के अंदर काफी सिमिलैरिटीज हैं. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर सूडो कोड्स विद विजुअल बेसिक कंटेंट. सिर्फ 4 चीजें ऐसी होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट सिमिलर. ठीक है? तो अगर आपको पाइथन का है तो वी विल आल्सो डिस्कस पाइथन, बट इन लेटर कोर्सेज, बिकॉज़ सूडो कोड्स तो हमें बेसिकली करना ही करना है ना. Okay. तो ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं. टाइप months and then the list of values that you want to store in it. This is identifier, means this is the name of the variable that we are actually storing for the data type. Right now it is acting as a variable for the data type. ठीक है? हम जब इसको डिक्लेयर करेंगे तो ये एज अ डेटा टाइप यहाँ पे आएगा. डिक्लेयर टाइम as months because it is a user defined data type, and here we have taken months as the variable name for the data type, and this is the way to store values in this enum. In this case, enum, in case of Visual Basic, we have got enum, months, and the list of values that are stored in it. Jan is equal to 1, Feb 2, March 3, and so on and so forth. Then end enum, जैसे कि end sub होता है, end while होता है, and if होता है, यहाँ पे भी हमारे पास end num होगा. And then after explaining or declaring the values in it, after defining the enum part, then we will use the declarative phase. Declare t1. अब ये variable है हमारे पास किस चीज का? The name of the variable in which we are storing the values months. ठीक है? Month की values यहाँ पे stored है, already set है, with the predefined order and the predefined values. Now we are going to access the name of the variable and the data type. Both the things are being defined by us. Is that clear? Please, anyone of you acknowledge ताकि मैं आगे बढ़ूं. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास देखो, there are few more examples. क्या आप में से कोई अपने ओन से कोई इस तरह की एग्जाम्पल बना सकते हो? I have explained one. आप चाहो तो एक सैंपल और देख सकते हो. We can save days in it. Type T days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. फिर आपने डे को डिक्लेयर किया एज अ वेरिएबल और उसके अंदर वेरिएबल डेटा टाइप लिख दी टी डेज. हम डिक्लेयर पहले नहीं करेंगे? नहीं, देखो, डिक्लेयर जब कर रहे हो तुम, डिक्लेयर का मतलब है कि जो चीजें हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होनी चाहिए. जब हम डिम नेम एज इंटीजर करते हैं, नेम को हम फर्दर यूज करते हैं तो हम उसको पहले डिक्लेयर करते हैं, है ना? यहाँ पे अगर तुम इस डेटा, वहां पे हमारी डेटा टाइप डिफाइंड थी, ऑलरेडी बिल्ट इन थी, बट यहाँ पे तो बिल्ट इन नहीं है ना. हमें पहले इसको एक्सप्लेन करना होगा व्हाट एक्चुअली इट इज एंड देन वी विल डू इट. ठीक है? राइट. अच्छा, यहाँ पे देखो डेज का हो गया. हम 7 डेज स्टोर करके एंड देन वी कैन यूज इट फर्दर. क्या आप अपने ओन से कोई एग्जांपल बना सकते हो? अभी ये कुछ और एग्जांपल्स इसके अंदर रखी हुई हैं. Any one of you, can you just quote any single example so that I'll continue?
कोई मुझे बता सकते हो? बोलो बेटा। एनीवन? अब्बास आप बताओ कुछ। Should I wait or continue? If you have anything in your mind. मैम ये कॉन्स्ट क्या है? कांस्टेंट? हाँ, दैट्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वेरिएबल है। जब हम किसी भी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट यानी उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करा रहे होते हैं और साथ में उसको डिक्लेयर भी कर रहे होते हैं, सो वी कंसिडर इट कांस्टेंट हार्ट एज इंटीजर। अब यहाँ पे तो ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, इंटीजर है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हम इसको किस तरह करेंगे, इनम के अंदर। इनम ये हमारी अपनी डेटा टाइप है और उसके अंदर हमने ये आइटम्स स्टोर कर दिया एंड देन इनम, और फिर हम इसको यूज करेंगे फर्दर। ये हमारा डेटा टाइप का नाम है सूट्स। डिम कार्ड सेट एज सूट्स। अभी क्लियर है? यस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यू कैन कम अप विथ सम एग्जाम्पल इनम की, और फिर आप उसको डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ whenever you get this example in your mind. सही है, there are few examples already written there. The second example of the non-composite data type is actually pointers. अब ये pointers, what actually a pointer is? पॉइंटर के बारे में कोई कुछ बताएगा? पॉइंटर क्या होगा? कुछ ऐसी जस्ट अ गेस। आप लोगों ने प्रोसेसर फंडामेंटल किया होगा, कुछ आइडिया है कि क्या हो सकता है ये पॉइंटर? रीड करने के लिए होगा मेरे ख्याल से। रीड करने के लिए बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द मेमोरी एड्रेस। यहाँ पे कुछ एड्रेसेस होंगे, यानी पोजीशन ऑफ द वैल्यू। आर राइट अब्बास। मेमोरी के अंदर जो एड्रेसेबल एरियाज होते हैं, they can be stored easily in pointers so that we can easily get references of those values. I am repeating, pointers basically store the values that are actually the addressable areas in the memory. ठीक है? It is a data type and it refers directly to the another value. सही है, and this value must be the addressable area of the memory. सही है, it is stored elsewhere in the computer memory using its address. अभी मैंने यही बात बोली, कंप्यूटर मेमोरी के वो वाले पार्ट्स जो कि एड्रेसेबल होंगे, उनका एक अपना पार्ट होगा फर्दर। ये आपका मेमोरी है और इसका सपोज this is the address, so this can be stored in pointers because this is the addressable location of the memory. ठीक है? Now moving on, it can be constructed dynamically. अच्छा, dynamically का मतलब ये है कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है, ये स्टोर हो गया डेटा, ठीक है। अब ये 1008 would be pointed towards this, और फिर यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फेच होगी। सो दीज थिंग्स, यहाँ पे ये हमेशा एड्रेस ही होगा, ठीक है। एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। मे बी आपको नेक्स्ट वैल्यू जो है वो लूप लगा हुआ हो या वो वैल्यू कहीं और मेमोरी लोकेशन में सेव हुई हुई हो, तो वो डायनामिकली एरे के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन देयर डायनामिकली। ठीक है, एड्रेसेबल लोकेशन, ये मेन पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर देती हूँ so that you can easily get reference of. Can find out the address of a variable in a program, create many of the abstract data types. अच्छा, ये आप लोगों ने, I don't know, आप लोगों ने ये लिंक लिस्ट और क्यूज और स्टैक्स वगैरह पढ़ा है थोड़ा सा कुछ इसका एएस में? हाँ बस बोलो बेटा, यू हैव अ क्वेरी? मैम वो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले किया पॉइंटर वाला, पॉइंटर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट पॉइंटर 2 टाइप्स के नहीं होते थे,
एक जो पहले वेरिएबल के पहले लगता था और एक जो वेरिएबल के बाद लगता था। यू आर राइट, मैं अभी उसी तरफ ही आ रही हूँ, ठीक है, अभी मैं उस साइड पर ही आ रही हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अच्छा देखो, ये हमारे पास है, देखो थोड़ा सा ये एग्जाम्पल को देखो। सबसे पहले हम पॉइंटर डिफाइन जब करेंगे तो वो किस साइड पे होगा, कौन है बेटा, जस्ट होल्ड ऑन जी। हेलो, अच्छा जी, तो हम क्या पॉइंटर पढ़ रहे थे। यहाँ देखो, हाउ वुड यू डिक्लेयर दिस डेटा टाइप, सूडो कोड्स और विजुअल बेसिक। अब सूडो कोड में देखो, वी हैव गॉट int pointer, और this is the way to declare pointers in the program। सूडो कोड के अंदर और विजुअल बेसिक के अंदर यहाँ पे आप लगाओगे int pointer and then the address of int variable, ठीक है। it would be represented in this way। यहाँ पे जब आपको, अच्छा आपके पास पेपर्स में जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपको ये वाली रिप्रेजेंटेशन मिलेगी int पॉइंटर की, ठीक है, जिसके अंदर एड्रेस स्टोर हुआ होगा। while in case of pseudo code visual basic you have this star over there in the beginning, ठीक है। तो this is the way of declaring pointers while writing a program or in case of pseudo code। the very first thing is int, because जितने भी pointers के addresses होंगे they are always integers, ठीक है। so हमने यहाँ पर int रखा इसी वजह से है, because reason is कि हमारे पास ये integer value होगी। then @ int variable int var, सही है, this is the address of the value where basically the value is being stored, ये वाला part। is that clear? हम तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे @int var, या यहाँ एक्चुअल एड्रेस लिखेंगे। हाँ, एक मिनट बेटा, ये अब्बास को, ठीक है बेटा, अब्बास आप जाओ, इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझसे वो चैट पे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। यू कैन गो, आई अंडरस्टैंड, आप कर सकते हो, जाओ। यू आर ऑलवेज वेलकम। हाँ सोहालिया पूछो, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ये @int var ही लिखेंगे हम यहाँ पे, या यहाँ पे एक्चुअल एड्रेस आएगा? देखो अभी तो whenever we are making a program we have to make it generic। मैंने शायद प्रीवियस क्लास में भी तुम्हें बताया था, we have to make it general। हम कभी भी यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं बताते, ठीक है। सही है, हम @int var ही लिखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा सेकंड डेटा टाइप हो गया, इसके अंदर कोई क्वेरी है? बिकॉज पहले आई हैव अ प्लान कि मैं पूरा एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मोस्टली ये Yes, sir. सूडो कोड का पार्ट ही आएगा, हमें इसकी एज सच प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। सही है। वो भी ले आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। अगर तुम्हें याद हो, मैं दोबारा से स्टार्टिंग पे चली जाती हूँ। हमने ये दो चीजें तो कर ली, इन्यूमरेटेड और पॉइंटर्स। थोड़ा सा एक ब्रीफ करोगे कि इन्यूमरेटेड और पॉइंटर्स के अंदर क्या डिफरेंस है? Enumerated बेसिकली डिक्लेयर करने के लिए होता है, नहीं क्या डिक्लेयर चीज? तो बाद में होता है, क्या मतलब चीज? वेरिएबल्स अम, या कांस्टेंट। बेटा हम डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, ये यूजर डिफाइंड टॉपिक हमारा देख रहे हो क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। हम यहाँ पे वो चीजें पढ़ रहे हैं जो कि एज अ डेटा टाइप यूज होंगी, समझ आई? जैसा कि सही है। यहाँ पे हमने किया था dim name as string, सही है, ये किया था हमने। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ये डेटा टाइप है। सही है। हम बेसिकली इस पार्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। वंस वी सही है। डिफाइन इट, फिर अगर हम इसको यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, इट वुड अगेन टर्न एज ब्लू कलर अगर हम विजुअल कंसोल एप्लीकेशन के अंदर इसको टाइप करेंगे तो, बिकॉज नाउ इट हैज बीन डिफाइंड एज ए कीवर्ड, वो हमारा यूज हो रहा था, सही है। नेम, हाँ, यस, नेम तो वेरिएबल है, लेकिन सही है। इसकी स्ट्रिंग डेटा टाइप ये बिल्ट इन थी। हम ये बिल्ट इन नहीं, हम अपनी बना रहे हैं डेटा टाइप, सही है। और वो जो हम अपनी बना रहे हैं, इट कैन ईदर बी कंपोजिट और नॉन कंपोजिट। इफ इट इज कंपोजिट इट वुड बी बेस्ड ऑन मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, बट इफ इट इज नॉन कंपोजिट इट वुड बी बेस्ड ऑन अ सिंगल टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। ओके।
Enumerated and pointers both are related to single type of data. If we are using enumerated, then we can define fixed values in it. But if it is pointers, then we can have only single value that is always integer because it stores address in it. Right. अभी समझ आया? Clear हुआ? Yes. ठीक है. Now moving on. Records and fields. मैं ये दिखा रही थी तुम्हें कि अब हम लोग ये वाली चीजें कर रहे हैं. Set, record, classes and objects. They are basically the composite data types. Composite means it is a blend of multiple data types. हम इसमें काम करेंगे, ये हमारी डेटा टाइप होगी, लेकिन इस डेटा टाइप के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स हम स्टोर करेंगे जिसके अंदर फर्दर मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर हो सकते हैं. इज इट सही, क्लियर? मतलब ये जो enumerated और pointers हैं, ये basically non composite है, हाँ, right? They नॉन are single. कंपोजिट. वाई? Yeah. बिकॉज इसमें सिर्फ सिंगल डेटा टाइप से डील हो रहा है. अगर इनम है या पॉइंटर है, कुछ भी है, Hmm. बट यहाँ पे वी हैव गॉट मल्टीपल डेटा टाइप्स. ठीक है, Right. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं रिकॉर्ड्स के ऊपर. Records and fields. The first thing is record. If you remember, कुछ याद है तुम्हें databases, कुछ थोड़ा बहुत, do you know a bit about databases? Yes. क्या होता है database? Database contains rows and columns हाँ, of different fields. सही है. मैं यहाँ पे अगर तुम्हें बनाकर बताऊं, बेसिकली डेटाबेस का स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह का होता है. ठीक है, यहाँ पे यू हैव गॉट द रोल नंबर के बाद नेम, क्लास, मार्क्स. अब रोल नंबर हमारे पास होते हैं इंटीजर. ठीक है, नेम हमारे पास होता है स्ट्रिंग, Hmm. क्लास डिपेंड करता है, मे बी इंटीजर हो, हम लोग इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं. मार्क्स हमारे पास हो जाते हैं इंटीजर. यही है ना? अच्छा, अब हमारे Marks पास, real numbers नहीं होंगे? हाँ, Real numbers नहीं होंगे marks? अच्छा, हम सीआई के हिसाब से, मेरा आदत हो गई सीआई के हिसाब से, तो उसमें तो डेसिमल में आते नहीं है ना, 0.5 तो होता नहीं है, तो आई ऑलवेज कंसिडर इट इंटीजर. Okay. अच्छा, अब देखो इसमें हमारे पास डेटा स्टोर्ड है. रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स. जस्ट इन केस अगर मैं इस तरह की कोई डेटा टाइप डिफाइन करती हूँ, तो मैं उसके अंदर सारे कॉलम्स और सारी रोज, इन सबको डिफाइन करूंगी ना डेफिनेटली, और इसका डेटा भी स्टोर करूंगी, तो हो गया ना ये मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा. Yes. That's the thing. Now another thing, since it is records and fields, so we have got multiple values stored in it. Mm-hmm. ठीक है, अगर के मल्टीपल वैल्यूज स्टोर्ड हैं, would it be considered as simple variable or array variable? Array. That's the simplest thing कि array का प्रोग्राम अगर आपको आता होगा, either in the pseudocode or visual console, आप बहुत आराम से इस प्रोग्राम को कोड लेंथ शॉर्टन करके और फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हो. अब थोड़ी बेसिक बन गई कि रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा है, नंबर 1. नंबर 2, it can store multiple values at a time. ठीक है, so that's the thing. This is the main concept that we will use further, and then start studying about record and fields, and then starting working on the declaration of it. Now just have a look of it. Record क्या होता है? इसमें record क्या है? Suppose अगर मैं यहाँ ले देती हूँ 1, 2, 3. The record is actually the content, I think, the values basically. अच्छा, ये जो है, ये सिलेक्शन है, इसको क्या कहेंगे, रिकॉर्ड या फील्ड? अगर इसमें डेटा होगा अंदर तो उसको रिकॉर्ड कहेंगे, बाकी नेम तो फील्ड हो गई है. नहीं बेटा, दिस इज द फील्ड. रिकॉर्ड होता है ये पूरा. ठीक है, यानी फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर 1 का नाम है ABC और उसकी क्लास है सपोज 9D और मार्क्स हैं उसके 45. तो रिकॉर्ड वुड बी अ कंप्लीट कॉम्बो of all the fields. That's the difference. Okay. ठीक है, और अगर मैं बोलूंगी ये वाला पार्ट, this is a single field of the whole table.
क्लियर हो गई बात? यस ठीक है, तो दैट्स रिकॉर्ड, अ वैल्यू दैट कंटेन्स अदर वैल्यूज indexed by names or anything indexed by roll number or department number and so on so forth. ठीक है, इंडेक्सिंग किसके बेस पर होगी? जो इसकी प्राइमरी की होगी. यस ठीक है, इट इज मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट वाइडली यूज, ये वाली. क्यों? क्योंकि हमारे पास मोस्टली मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर होता है और डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को डील कर रहे होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज द कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप दैट वी यूजुअली डिफाइन. Field, an element of a record. It is an element of a record. ABC पूरे रिकॉर्ड का एक सिंगल एलिमेंट है. एलिमेंट ठीक तो है, ये फील्ड हो जाएगी. हाँ. 9D is a single element of record 1. यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Records are collections of data items or fields stored about something. Collection of fields stored about लेकिन ये तो roll number 1. के नीचे लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स के बारे में. ये हाँ? ऊपर नहीं जाएगा रिकॉर्ड्स, ये वाला दूसरी लाइन ऊपर वाले में नहीं जाएगी. यहाँ पे नहीं यहाँ नहीं, ऊपर रिकॉर्ड्स में अच्छा, सॉरी, हाँ ये थोड़ा सा हो गया गलत लिखा हुआ है. गड़बड़. हाँ ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसको इधर मूव कर देती हूँ. चलो, अच्छा. दे अलाउ यू टू कंबाइन सेवरल डेटा आइटम्स और फील्ड इनटू वन वेरिएबल. ये भी ऊपर वाले का ही पार्ट है. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम कि किस तरह इसको डिक्लेयर करना है और किस तरह यूज करना है. मैं दोनों एस्पेक्ट से बता रही हूँ क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, फर्दर प्रोग्रामिंग, उसके अंदर हम चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं. वंस यू स्टडी तो इट्स ऑल योर चॉइस, ओपन एंडेड होता है आपका प्री रिलीज. आप जो दिल चाहे आप इसके अंदर फर्दर स्टोर कर सकते हो. सूडो कोड के अंदर आपने क्या किया कि टाइप, हमने एन्यूमरेटेड के अंदर भी टाइप किया था, यहाँ पे भी हम टाइप कर रहे हैं टाइप डेटा, और फिर हम जितनी भी फील्ड्स होंगी, नेम, एज, जेंडर, हम सारी चीजें इसके अंदर स्टोर करेंगे विद द सेम डेटा टाइप दैट दे नीडेड. नेम स्ट्रिंग होता है, एज रियल होता है, जेंडर 4 होता है. उन सबको हमने डिक्लेयर कर दिया इसके अंदर और हमने इसको टाइप और एन टाइप कर दिया. तो बस मैं इसमें डिफरेंस मतलब पिछले साल भी हम ऐसे ही करते थे. रिकॉर्ड्स ऐसे ही बनाते थे डेटाबेस का. लेकिन उसमें टाइप यूज नहीं करते थे हम, फंक्शन यूज करते थे या सब यूज करते थे, जैसे कि सब, एंड सब और कुछ हाँ, ऐसा. तो तो बस इसमें यही बेसिकली तुम डिफरेंस लोग क्या करते थे, वो तुम लोग फंक्शंस और सब रूटीन्स बना के और उसको फर्दर करते थे. वो तुम्हारा फंक्शन होता था, उस फंक्शन को डिफाइन करके और फिर तुम उस फंक्शन को कॉल करते थे. समझ आ यस. रही है बात? तो वो कॉलिंग था. फंक्शन और प्रोसीजर्स हम खुद बनाते हैं, वहां पे भी यही दो चीजें होती है, यूजर डिफाइंड भी होते हैं और हम अपने खुद भी बना रहे होते हैं. ठीक है, हाँ तो जो हम इसमें खुद क्या बनाते डिफरेंस है? हैं उसके अंदर हम अपनी डेटा टाइप्स बता देते हैं. ठीक है, यस, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है ये वाले वहां पे तरीके? बेसिकली वहां पे पैरामीटर्स होते हैं जो कि उस फंक्शन का एक पर्टिकुलर काम होता है. हाँ, कि सपोज अपर केस हो गया या लोअर केस हो गया, यू नीड टू पास सम वैल्यू इन इट, और वो वैल्यू पास होने के बाद वो फंक्शन परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ दैट फंक्शन. या अगर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के 4 फंक्शंस बना लिए तो वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा टास्क. ठीक है, और वो प्री डिफाइंड वैल्यूज, अगर आप वो वैल्यूज डिफाइन, जो उसके अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं हम, अगर आप वो वैल्यूज पास नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. यहाँ पे तो हम बेसिक स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन कर रहे हैं. हम अपनी ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं और इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर भी करा रहे हैं और साथ में उसको एक्सेस भी कर रहे हैं. सही. सही है. अभी मैं तुम्हें, अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन है तो मैं अभी तुम्हें विजुअल बेसिक का एक प्रोग्राम दिखा देती हूँ. इसके अंदर आई थिंक एग्जांपल गिवन है, मैं अभी तुम्हें बता देती हूँ उसको, कि जब हम उसको चलाएंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा. ठीक है, विजुअल बेसिक में हम क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर, सिर्फ फर्क क्या होगा कीवर्ड्स का. वीबी में हम स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर करेंगे और यहाँ पे हम टाइप एंड टाइप करेंगे. समझ आई? अब देखो, हाँ इसी एग्जाम्पल को हम कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं हम. ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जिसमें सिंपल वेरिएबल यूज हुए हैं, डिम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. ये 3 तरह की डेटा टाइप्स हैं एंड हियर वी आर एक्चुअली इंसर्टिंग डेटा इन इट. आईडी हमने इंसर्ट की, इंसर्ट नेम, इंसर्ट डेट ऑफ बर्थ. इट्स अ सिंपल प्रोग्राम और करके हमने इसको हाँ ये स्टोर पिछले करा. साल वाला है बिल्कुल.
हाँ सेम टू सेम, ये पिछले साल वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ, तो वही सिंपल हमने किया हुआ है, क्योंकि एक सिंपल चीज है, इसके अंदर हमने कोई भी रिकॉर्ड डेटा टाइप को एक्सप्लेन ही नहीं किया, ना ही डिफाइन किया। ठीक है, तो हम फर्दर इसमें आ जाते हैं कि अगर हम इसको एज सच टाइप करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट होगा? क्या मल्टीपल वैल्यूज इसमें स्टोर हो सकती? हर 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 वेरिएबल की वैल्यू अलग स्टोर हो रही है ना, मतलब वो कंसोल राइटर लाइन हर वेरिएबल के लिए अलग खुल रहा है। वो तो कर रहा है, वो तो कर रहा है। हाँ, लेकिन क्या डेटाबेस में ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दे देगा? नहीं। नहीं देगा। क्यों? एक तो इसमें लूप नहीं लगा हुआ। चलो अगर मैं लूप लगा भी देती हूँ, ठीक है, मुझे 4 इस रिकॉर्ड्स तरह का नहीं एंटर देगा, करने, वो मैं बस रिकॉर्ड एंटर नॉर्मल कर दे भी देगा। देती हूँ। हाँ या जैसे नीचे बना हुआ है ना आउटपुट एग्जांपल, हाँ या ऐसे दे देगा। हाँ, ऐसा दे देगा। और अगर मैं न्यू स्टार्ट करूंगी प्रोग्राम को तो फ्रॉम द बिगिनिंग ये मुझसे नई वैल्यूज मांगेगा और नया आउटपुट भी दे देगा, बट प्रीवियस वैल्यू मुझे नहीं देगा। अगर मैं स्टूडेंट आईडी 10 एंटर करती हूँ तो 12 वाली जो है वो रिमूव हो जाएगी, बट मुझे तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर डेटा चाहिए ना। हम्म दिस वुड नॉट बी पॉसिबल इन दिस केस। अब हम फर्दर क्या करेंगे? एक हमारे पास सोल्यूशन, हम एरे लगा देते हैं। एरे लगा सकते हैं ना? हम्म हम एरे लगा सकते हैं, एरे लगा देते हैं हम। और एरे लगाने के बाद हम फिर फर्दर क्या करेंगे कि इसके अंदर, आई कैंट सी योर स्क्रीन एनीमोर, सॉरी, योर स्क्रीन इज नॉट शेयरिंग एनीमोर। अच्छा आई थिंक बंद हो गई होगी, ठहरो मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। अभी आ रही है? यस। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें क्या करती हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ ताकि तुम्हारा ये एक पॉइंट, ये तो हो गया। आगे चलते हैं अगर इसकी एग्जांपल, हाँ ये परफेक्ट। अब देखो वो एक स्टूडेंट के लिए था, नाउ फॉर मोर देन वन स्टूडेंट हमने स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट आईडी 3, 3 स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग ले लिया। ठीक है, ये कमेंट बना हुआ है, बेसिकली हम इसको एज इट इज अगर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो ये चल जाएगा, बल्कि उसको नहीं इसको करते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो ऑन कर ले। ये देखो, अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा पार्ट क्या हुआ हुआ है, ये वाला है, ये हमने डेटा टाइप अपनी डिफाइन की है, सही है। और इस डेटा टाइप के अंदर जो हमने डिफाइन की है इसका बेसिकली नाम हमने क्या एक है? खाली, या बेसिकली हमने एक खाली डेटाबेस बना लिया है विद जस्ट द फील्ड्स। हाँ एग्जैक्टली, इट्स अ डमी डेटाबेस जो कि हमारे एग्जीक्यूशन टाइम पे जनरेट होगी और फिर खत्म भी हो जाएगी। इट इज नॉट बीइंग स्टोर्ड एनीवेयर, मेमोरी में कहीं भी एलोकेट नहीं हो रही, जिसका कोई सेपरेट नाम नहीं है। डिस्प्ले करने के लिए। हाँ सही है। सही है। तो अब क्या हुआ, यहाँ देखो ये स्टूडेंट नेम है, ये स्टूडेंट है, ये हमारी डेटा टाइप है। और यहाँ देखो ये क्या हुआ है, डिम न्यू स्टूडेंट एज स्टूडेंट, ये तो कोई, ये डेटा टाइप बन गई। हाँ ये डेटा टाइप बन गई ना हमारी। ये एक रिकॉर्ड डेटा टाइप है पूरी हमारी, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर किए हुए मैंने। ठीक है, और ये यहाँ पे एज ए डेटा टाइप यूज हो रही है, जहां पे मैं एज इंटीजर, एज फ्लोट, एज स्ट्रिंग लिखती हूँ, वहां पे मैंने एज स्टूडेंट लिख दिया। सही। समझ आ गई? हम्म, अच्छा इसके अंदर हमें, क्योंकि मल्टीपल फील्ड्स हमें ऐड करनी है इस डेटाबेस के अंदर, तो हमने क्या किया, एरे ले लिया 400 स्टूडेंट्स इसके अंदर स्टोर करके, एंड देन वी कैन प्रिंट देम ऑन द स्क्रीन। हम इसको चला के भी देख सकते हैं। मैं बस 400 को जरा कम कर दूं ताकि इतना टाइम ना लगे। या ये 4 स्टूडेंट्स के लिए हो गया टोटल। हाँ बल्कि मैं इसको 1 से कर देती हूँ तो ये और कम हो जाएगा। चला के देखें, बाकी तो आता होगा ना सब तुम्हें, कॉनकैटिनेशन और सारा कुछ। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही, बिफोर लाइक यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, ये तो इंसर्ट द आईडी ये मांगेगा उस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। हाँ लेकिन अब जब नीचे हम लोग करते थे तो हम लोग न्यू स्टूडेंट्स एक्स डॉट आईडी तो नहीं करते थे,
डायरेक्ट आईडी इज इक्वल्स टू कंसोल रीड लाइन, के ये जो ऊपर उसने इंसर्ट किया है वो आईडी में जाके स्टोर हो जाए। एग्जैक्टली ये वाला पार्ट हाँ। एक ये है, मैं तुम्हें साथ साथ एनोटेट भी करके दिखा देती हूँ जो मेन मेन चीजें। एक तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि हमने अलग से किया है, ठीक है। फिर हमारे पास एक ये वाला पार्ट है जो हमने अलग से किया है, एक हमारे पास ये वाला पार्ट है दैट वी हैव डन सेपरेटली। लेकिन अब मुझे इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि डॉट आईडी और डॉट नेम और डॉट डीओबी करके क्यों कर रहे हैं हम। इसलिए कर रहे हैं, देखो यहाँ पे पहले सपोज हम इसको कट कर देते हैं, ये तो हमारा हो गया एरे का सिंपल प्रोग्राम, ये हमारा हो गया एरे का सिंपल प्रोग्राम, उसमें हमने ये भी नहीं किया था, ठीक है। हमने सारी ये चीज हटा दी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जीक्यूटेबल रन टाइम के ऊपर एक डेटाबेस बना रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया, पहले एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर एक डिफाइन कर लिया, और उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 3 फील्ड्स हैं। एक है हमारे पास आईडी, देन हमारे पास है नेम, और एक हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब सपोज फर्स्ट स्टूडेंट का अगर मैं एंटर करती हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो वो जाएगा इसके अंदर, और इस पूरे का नाम क्या है, स्टूडेंट। समझ आ रही है? तो स्टूडेंट की आईडी के अंदर ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट स्टोर हो जाएगा, फिर स्टूडेंट की आईडी के अंदर दूसरा स्टूडेंट स्टोर हो जाएगा, फिर ये 3 तक ऐसे ही चलेगा। exactly. So we are actually accessing separate data type which has got different fields, and now we are generating different records in it. And So this with is the why we're reference, using the new students bracket X. with the reference of the database data type that we are using, and with the reference of the fields that we are using, we have to generate separate records. ठीक है। अगर सिर्फ एरे होता तो हमारा इतना पार्ट काफी होता, हम लूप से उसको कंट्रोल कर लेते, बट यहाँ पे तो हमें इस डेटा टाइप को भी तो एक्सेस करना है ना। सो दैट्स द थिंग। चलो ठीक है, इसको चला के देखते हैं क्या क्या आता है। हाँ, इसको चला के देखते हैं अभी हम। अच्छा, इंटीजर है आईडी, तो हम इसकी आईडी ले लेते हैं 1, 12 ले लेते हैं, नेम हम ले लेते हैं सोले, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं 12 12 12, आईडी लेते हैं दूसरी अब्बास, ठीक है। क्या हो गया, ओहो इंटीजर देना था, मैंने अब्बास दे दिया, सॉरी। ये आईडी लेनी थी। 12 और नेम हो गया, और डेट ऑफ बर्थ हो गई 11 11 11, आईडी में मैंने दे दिया 45, और नेम दे दिया अब्बास, और डेट ऑफ बर्थ दे दिया 9 9 9 सपोज, और आईडी मैंने अपनी दे दी 23, और मैं डेट ऑफ बर्थ दे देती हूँ 8 8 8। इमेजिन ऐसे, ये क्या हुआ, कहाँ चला गया मेरा प्रोग्राम, खत्म हो गया। वो मैंने 2 दफा एंटर प्रेस कर दिया, वो चला गया। 12 ABC 11 11 11 ID 2 डेट ऑफ बर्थ 4 4 4, और आईडी दे देते हैं हम 123, नेम कहाँ जा रहे, ओहो कंसोल, कंसोल रीड लाइन। सो सॉरी, दोबारा चलाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो अब करते हैं दोबारा से, कुछ भी रैंडम ले लें। हाँ लेकिन बस वो डेट का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, वो मंथ और जो है ना वो अलग हो जाएगा। फिर हम अब देखो आ गया,
आ तो गया लेकिन ये उसमें तो नहीं आया, किसमें? मतलब एक चार्ट में तो नहीं आया ये, नहीं देखो, जैसे हमने उससे कंसोल पहला वाला एप्लीकेशन के अंदर देखो, डेटाबेस तो हम लोग मैनुअली बनाते ना, मेमोरी में कभी भी इस तरह के कॉलम्स और रोज नहीं बनेंगे आपके पास। हम्म, सही है, ये तो हम लोग सपोज अगर मैं तुम्हें कहती हूँ भाई डेटा कलेक्ट करो कि कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो तुम एक पेपर पे अपना नाम लिखोगे और अपना रोल नंबर लिख दोगे और मंथ कर दोगे कौन से मंथ में तुमने कितनी क्लासेस ली है, ठीक है। हम्म, इसी तरह से अपने मार्क्स लिख दोगे। तुम सबसे पहले ऑटोमेटिकली भले कॉलम बनाओ ना बनाओ, तुम सिर्फ ऊपर हेडिंग लिख के और डेटा स्टोर करना शुरू हो जाओगे। ऐसा ही होता है ना हम्म, मेमोरी के अंदर। यहाँ पे एक तो हमने एरे लिया है, पहली चीज तो एरे हमेशा कंसेक्यूटिव लोकेशन के अंदर डेटा स्टोर करेगा। ये बात एक इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है यहाँ पर, सही है। तो वहां पे हमारे पास ये डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर मैं ब्लैंक भी दूंगी तो वो ब्लैंक स्टोर कर देगा डेटाबेस के अंदर। तो कभी भी वो इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं बना के देगा तुम्हें। डेटा सही है। जरूर स्टोर होगा बट वो तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एरे है और हमारे पास डायरेक्टली हम डेटाबेस बना रहे हैं रन टाइम पर, तो ये देखो सारी वैल्यूज का इसने रिकॉर्ड रखा हुआ है। सही है। समझ आ गई? हम्म, चलो आगे बढ़े हम फर्दर। जी। ठीक है, ये फर्दर इसी की एग्जांपल्स हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो आप पे फर्दर इसको देख सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है नेक्स्ट डेटा टाइप। हमने रिकॉर्ड तो कर लिया और फील्ड भी कर लिया। अब हमारे पास कौन सा वाला बचा है? वी हैव गॉट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स और सेट, ठीक है। तो हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे चले जाते हैं। ये कुछ आइडिया है क्लास और ऑब्जेक्ट का क्या होता है? ये नहीं मैम, थोड़ा बहुत कुछ सी प्लस प्लस का पता है, सी सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस। सुना है सिर्फ। अच्छा ये पता है कि लैंग्वेज है, उसके अलावा उसकी फंक्शन नहीं पता, क्योंकि एएस में था नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी इस प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बात एक सिंपल सी क्लियर हो गई। इसके अंदर हम क्या करेंगे? अभी तुमने एक एग्जांपल दी थी ना कि मिस हमने लास्ट उसमें बनाया था एएस के अंदर कुछ फंक्शंस बनाए थे, हम्म, ऐसा ही किया था ना। तो जी। और ये बिल्कुल उसी तरह से था जब हम रिकॉर्ड डेटा टाइप इनिशियलाइज कर रहे थे कि भैया हमारी डेटा टाइप होगी। तो हम उसके अंदर भी यही कर रहे थे कि हमने थोड़ा सा प्रोसीजर वाला टच था। यहाँ पे भी देखो इट्स प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम्म, ठीक है। किस तरह से प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा कि हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जो चीज भी हम करेंगे वो हमारा एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। मेनली वो हमारा एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा, ठीक है। अगर मैं ठीक। सपोज स्टूडेंट के ऊपर काम कर रही हूँ तो उसकी मैं एक अलग से क्लास बना लूंगी। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स दो चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर मैं सारा काम करूंगी। इससे क्या हम्म, होता है? इससे क्या होगा? कुछ कुछ आइडिया है कि क्या हो सकता है इसका एडवांटेज? किसका? अगर हम किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर लें अगर, तो इससे क्या एडवांटेज हो सकता है? एडवांटेज तो मतलब बार बार चीज लिखनी नहीं पड़ेगी एक। देखो एक हम काम करते हैं, तुम्हारा रूम जो है उसके अंदर तुम्हारी बुक शेल्फ है। उस बुक शेल्फ के अंदर तुम्हारी बहुत सारी किताबें, सपोज हम्म, तुम्हारा लिटरेचर का एक सेक्शन है अलग, उसका तुम्हारा एक कलेक्शन है। और फिर तुम्हारी कोर्स बुक्स हैं, तुम्हारा अम्मी को पोट्री पढ़ने का शौक है, और तुमने अपना एक बुक शेल्फ के अंदर सारी बुक्स को एक साथ डंप कर दिया। हम्म, इज दिस एन ऑर्गेनाइज्ड और करेक्ट वे? या फिर तुमने सेक्शंस बना लिए, टैगिंग नहीं भी की तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये वाला लिटरेचर वाला पार्ट है उर्दू लिटरेचर, दूसरा जो है वो इंग्लिश लिटरेचर है, यस, सेकंड शेल्फ के अंदर पोट्री है। हाँ द सेकंड वन वुड बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, तो उसके अंदर क्या होगा कि बेसिकली तुमने दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। सेकंड वाली मींस कि अगर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बुक निकालनी है
तो तुम क्या करोगे, उस सेक्शन में जाओगे एंड देन यू कैन पिक अप द थिंग्स। या जैसे एसक्यूएल में हम सेलेक्ट करते थे कि सेलेक्ट दिस फील्ड फ्रॉम दिस टेबल वेयर दिस इज दैट हाँ एंड हाँ और ये हाँ, सब। Yeah, परफेक्ट। तो तुम वही करोगे कि कौन सा उस सेक्शन में गए, उस सेक्शन में जाके तुमने अपनी रिक्वायर्ड बुक निकाल ली, ठीक है। सही। ऑथर वाइज भी अरेंज होता है। तो ये एडवांटेज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच का, कि हर चीज जो है वो क्लासिफाई हो जाती है सेपरेटली। नॉट ओनली दिस, अगर आपने उसको काम करना है, उसके ऊपर स्टोर करना है या एक्सेस करना है, तो वो सेपरेटली उसको एक्सेस करके एंड विद लेस टाइम आपको वो शो कर देगा या डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर, या आपका जो भी रिक्वायर्ड टास्क है वो परफॉर्म कर देगा। सही। समझ आ गई? सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। सही है। अच्छा जी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। कार इज एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, अगर कार है तो कार का मैन्युफैक्चर कलर, जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं वो सारी एक जगह पे होंगी। जैसे कि मैंने अभी बुक शेल्फ की एग्जांपल दी, इट्स सेम लाइक दैट। अच्छा, अब मैं फर्दर इसके अंदर और क्या आज बता सकती हूँ, क्योंकि 5 मिनट रह गए, मुझे 5 मिनट का ब्रेक भी चाहिए, बिकॉज अभी मेरी 11 बजे एक और क्लास है। तो अच्छा। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ तक इसको एंड करूँ। हम एक काम करते हैं, अभी इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है, और फिर फर्दर इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की फर्दर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखें। मतलब लेकिन मैं एक चीज ये सोच रहा हूँ कि हमने एएस में जब एसक्यूएल वाली चीज कर ली थी हाँ और उसका उसका काम भी यही था, हाँ, तो फिर मतलब ए2 में ऐसी चीजें क्यों आ रही है? देखो एसक्यूएल इज टोटली डिफरेंट, हाँ, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट सी प्लस प्लस, इट इज टोटली डिफरेंट। जो एसक्यूएल है वहां पे तुम डेटाबेस बना के उस डेटा में से चीजें फैच करते हो, यस। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये बेसिकली क्या करती है कि उस प्रोग्राम को फर्दर जो है इनहेंस करती है। सपोज तुम कोई गेम बना रहे हो, क्या गेम में डेटाबेस बनाओगे? नहीं। गेम में डेटाबेस की जरूरत ही नहीं है। आपका जो भी है विनिंग लूजिंग, आपने इनम की डेटा टाइप बनाई, उसके अंदर रिकॉर्ड रखा, ये तो एक आ गई थी रिकॉर्ड डेटा टाइप जिसके अंदर हम डेटाबेस की फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे थे। बट एक्चुअली हमारी प्रेफरेंस क्या होती है कि हम डेटाबेस लें और उसके अंदर एसक्यूएल को करें। यस। समझ आ गई? सो दैट्स बेसिकली अ डिफरेंस। अप्रोचेस डिफरेंट है क्योंकि एप्लीकेशंस डिफरेंट है, हमारी नीड डिफरेंट है, हमारा जो टारगेट है वो डिफरेंट है, सही। ठीक है। सो दैट्स द थिंग फॉर टुडे। आज हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम फर्दर इसको देख के और फिर हम डेसिमल के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट एएस के अंदर तुमने किया होगा वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, सही है। तो वो इंटीजर्स पे था, साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स हमने देख लिए थे। अब हम देखेंगे रियल नंबर्स, यानी कि डेसिमल नंबर्स को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, ठीक है। चलो एंड द क्लास। यस एंड द क्लास बट ये वाले नोट्स मुझे भेज सकती हैं आप? हाँ बेटा, मैं हो सकता है लेट नाइट भेजूं या सुबह में भेजूं, गूगल क्लासरूम पे मैं कर दूं अपलोड, या गूगल अभी चाहिए? क्लासरूम पे गूगल क्लासरूम पे मैं हूँ नहीं असल में। आप ईमेल मुझे कर दें अपनी ईमेल, जैसे मुझे वो टेक्स्ट बुक की थी ना पीडीएफ हाँ फाइल, हाँ, चलो मैं वैसे कर मुझे देती आप हूँ, मैं अभी या कर व्हाटएवर इज ओके विद यू। और मुझे इस साल का कोड बता सकती हैं आप कंप्यूटर साइंस का कि हाँ, हम कौन सा कोड? 9618 9618, 618। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। चलो ओके, सी यू, अल्लाह बाय बाय। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।